प्रभु पिता के नाम। आप सबको देख करके बस हमें क्या बोलना है वही नहीं आ रहा है कि आप सबकी प्रेजेंस में ये माहौल इतना आध्यात्मिक, इतना पावरफुल, इतना पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज हो चुका है जो कुछ बोलने को बाकी नहीं। फिर भी वाणी के बगैर तो कुछ होता नहीं, क्योंकि हम जिस दुनिया में हैं वो टकी वर्ल्ड है। इसके ऊपर एक वर्ल्ड है जिसको हम कहते हैं मूवी वर्ल्ड, मतलब साइलेंस वर्ल्ड है, लेकिन यहाँ बोलने की जरूरत होती है। तो आप सभी इतनी प्यार से बाबा के घर पहुँचे। बाबा का घर मीन्स आप सबका अपना घर है, तो अपने घर में अपने भाई बहनों को दिल से, जान से, शिव बाबा की तरफ से, अपने बहनों की ओर से सबको तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है। हम नियम प्रमाण थोड़ा सा संस्था का परिचय देना चाहूँगी। ये एक ऐसी संस्था है जिससे सबको अपना परिचय मिलता है। जिस संस्था के संस्थापक स्वयं परमात्मा होते हैं, स्वयं ईश्वर होते हैं, इसीलिए इसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इसका हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है और भुवनेश्वर में विगत 40 सालों से ये ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं और विभिन्न विंग्स के आधार से लगभग 21 विंग्स बनी हुई है, जिसके आधार पर ईश्वरीय सेवाएं चल रही है। और अभी खास करके हम लोग एक अभियान चला रहे हैं। आप लोग जब बाबा के घर आए देखे होंगे, बहुत बड़ा बस खड़े हैं जो निशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। लगभग 1000 प्रोग्राम्स हो चुका है। 1.5 महीने से ये सेवाएं चल रही है और आज विशेष रूप से आप सबको इस प्रोग्राम के लिए बुलाया कि आज हर कोई कहता है कि हम बिजी है, बिजी है, बिजी है, पर इस बिजी शेड्यूल में भी हम मेडिटेशन कैसे करें और मेडिटेशन करते हुए अपने कार्यों कर सकते हैं। इसीलिए टॉपिक का नाम बहुत ही अच्छा रखा, इजी मेडिटेशन फॉर बिजी पीपुल। तो इसी लक्ष्य से आप सबको बुलाया गया है। और हमारी मोनिका दीदी जी जो IT से बिलोंग करते हैं, read out it's an outstanding biodata of Monica's sister. A brand storyteller, a digital strategist, and now a corporate trainer. Has served the industry for more than 2 decades in managerial as well as leadership positions, and about the same in the world of digital advertising. She has worked with reputed brands like Canon, UI, Microsoft, India TV, Wipro, Honda, and other MNCs as a professional and rose in the rank of from marketing executive to the country head, spearheading complete business divisions. In her entrepreneurial avatar, she has been the inspirational behind the successful brand communication agency, Interactive Bees, which has spread its wings over 15 years of its existence and has partnered with national and governmental and international brands. She has successfully built the organization from scratch since its inception and got it stand tall among well-established competitors. The agency has won many awards under her leadership. Taking stock of her contribution to this sector, Insight's success, a popular IT magazine has chosen her among 50 most empowering women in business. She has also been honored with Eminent Achiever Award in Integrated Marketing Communication by Indian Conventions, a media consortium. She has received India's most prestigious Women Empowerment Award by Merit Awards and Market Research. She believes when nothing is sure, everything is possible. Monica believes that COVID brought along an opportunity for everyone to pause and reflect within our own selves. She utilized her time during COVID to take sessions on digital detoxification, keeping calm no matter what, increasing concentration, time management, work-life integration, stress management, being the best you self-improvement, modeling, and more. Various corporates and universities has taken advantage of this. She is an innate spiritualist and has been associated with Brahma Kumaris for over more than 38 years. She strongly believes that in today's world,
where everyone is talking about disruptive solution, the biggest and most profound disruption will come from within each one of us, and that is to know and understand who we are and harnessing our inner powers. The biggest gift that we could get from our life is the thought power. One must learn the art of making our mind our friend. She is also a firm believer that each one of us has the power to create our own destiny. One needs the right nurturing and investment of time and energy into knowing ourselves. It's only then we can deal with all kind of challenges smartly. This is a little bit from her. It's a very short one, but it's an outstanding sister that you have come and talking to us. आप हमारे बीच में पधारे and now it's time to listen. I must thank Geeta Didi bringing her to this. Thank you very much. तो मैं आपको एक बात बताती हूँ दो डॉक्टर्स की। बहुत अच्छा उनका जीवन चलता था। उनको एक बेटे से ब्लेस किया भगवान ने, और वो बेटा भी ऐसा अमेजिंग। अब किसी ने पूछा कि भाई दूसरा क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि दूसरी तो बेटी चाहिए। अच्छा, हालांकि माँ को वरदान प्राप्त था कि तुम्हें 7 बेटे होंगे, लेकिन उनकी तपस्या और उन्हें एक बेटी मिल गई। बच्चों के बड़े होने के जो समय था वो बहुत खूबसूरत बीत रहा था। दोनों भाई बहन का अटूट प्यार, हर तरफ जहां भी जाते बहुत खुशियां बांटते। अब शुरू हुई पढ़ाई। तो बेटा तो अच्छा था, पर बेटी जैसे जैसे क्लासेस बड़ी होती गई तो उसे पढ़ने लिखने में बड़ी तकलीफ थी। लोग अक्सर सिर पे यूं मारते और पूछते कि ध्यान कहाँ है। उसको भी नहीं समझ में आता कि ध्यान कहाँ है, और अक्सर लोग ऐसे ही चले जाते थे। तो वो अक्सर भगवान के कमरे में आकर पूछती कि मेरा ध्यान कहाँ है, ये ध्यान कौन सी दुकान पे मिलता है, इसकी कुछ कमी है मेरे पास, तो प्लीज ध्यान दिलवा दो। उसको वही बीमारी थी जो आपने तारे जमीन पर देखी होगी, कि देखती कुछ थी, पढ़ती कुछ थी, लिखती कुछ और ही थी, क्योंकि बात ही नहीं समझ में आती थी, शब्द नाचते थे। तो अक्सर भगवान के कमरे में जाकर 2 आंसू टपका देती और कहती थी कि मुझे यहाँ क्यों भेजा है। हर एक की गालियां सुनने के लिए, मैं कुछ कर तो पाती नहीं हूँ, स्कूल में भी परफॉर्मेंस बहुत लो थी। तब उसका इंट्रोडक्शन ब्रह्मा कुमारी से हुआ, और ब्रह्मा कुमारी में जो एक चीज उसको बहुत सुंदर लगी वो आज आपके साथ शेयर करना चाहेगी, क्योंकि वो लड़की मैं ही हूँ आपके सामने खड़ी। लिखने पढ़ने में सिफर, लोगों से डांट खाना, देखो तुम्हारा भाई कितना इंटेलिजेंट है, 18 गोल्ड मेडल्स हैं, तुम क्यों नहीं पढ़ती हो। तो वास्तव में जब समझ आया कि इट इज माइंड ओवर मैटर्स, ये शरीर केवल एक गाड़ी है। गाड़ी में जरूर तकलीफ हो सकती है, लेकिन यदि गाड़ी चालक, जिसके विषय में आज हम समझेंगे, वो यदि पावरफुल है, वो यदि सक्षम है, तो वो टूटी गाड़ी को भी बहुत बेहतरीन चला सकता है। तो ये वो स्थान है जहां कैसी भी गाड़ी आ जाए, टूटी फूटी, कोई बहुत बीमार रोगी, लेकिन ड्राइवर को सक्षम करने की ये वो कारखाना है। हा? तो यदि आप कोई भी एज के हो, किसी रिलीजन के हो, कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ सब प्रकार की गाड़ियां ठीक होती हैं, क्यों दीदी? हा? और हम सब मैकेनिक्स यहाँ बैठे हैं, और सुप्रीम मैकेनिक है भगवान।
तो ये कला मैंने यहाँ आकर के सीखी। और फिर पहली बारी जब भगवान से मिलना हुआ तो सर पे वरदान आया कि तू तो योगी आत्मा है। तो उस दिन से योग लगाना सहज हो गया। तो बहुत सुंदर ये कहानी है। एक बारी की बात है, एक साधु महात्मा नदी के किनारे बैठे थे और नदी के किनारे बैठे बैठे कह रहे थे, कब समाप्त होगा, कब समाप्त होगा। लोग देख रहे थे ये क्या बुड़बुड़ा रहे हैं, कब समाप्त होगा, कब समाप्त होगा। लोग आ रहे थे, देख रहे थे, वो यूं करके साधु जी ऐसे इधर इधर। तो एक से रहा नहीं गया, उसने कहा, साधु महाराज आप क्या कह रहे हैं, कब समाप्त होगा, कब समाप्त होगा। कहते हैं मैं सोच रहा हूं कि ये नदी का प्रवाह कब समाप्त होगा, कब ये जल खत्म होगा। कहते हैं कैसी बात कर रहे हैं आप। कहते मुझे पार करनी है नदी। तो उन्होंने कहा आप एक नैया ले लीजिए, नाव ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, जब ये पानी समाप्त होगा तब मैं नदी पार करूंगा। तो लोग कहते हैं ये कैसा मूर्खतापूर्ण व्यवहार है महाराज, ऐसी बातें नहीं करिए। कहते हैं मैं तो वो बखान कर रहा हूं जो आप सभी कहते हैं। लोग हैरान परेशान, हमने ऐसी क्या बात कह दी। तो उन्होंने कहा आप सब भी यही कहते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हम भगवान के पास आ जाएंगे, जब ये समस्या निबट जाएगी तो हम भगवान के पास आ जाएंगे। तो कल का तो पता ही नहीं है ना। इसलिए वही बात मैं आप सबसे भी कह रहा हूं कि जब ये नदी समाप्त हो जाएगी, ये जल का प्रवाह खत्म हो जाएगा, तो मैं भी नदी पार कर लूंगा। तो आप ही की दिल की कहानी मैंने भी सुना दी। तो आज जब हम भगवान के घर आ ही गए हैं तो हम सभी ये समझ लें कि आज मनुष्य ने बहुत से मुखौटे पहने हुए हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर मुखौटे के पीछे एक चेहरा है और हर चेहरे के पीछे एक असलियत है। कभी वो मुखौटा आई एम ब्यूटीफुल, आई एम टेक्नोलॉजिस्ट, आई एम डायरेक्टर, मैं तुम्हारी मम्मी हूं, मैं बड़ा हूं, मुझे मान मिलना चाहिए। लेकिन कोरोना आया, कोई भी ऐसी तकलीफ आती है तो वो क्या करती है, सबका मुखौटा उखाड़ देती है और फिर निकलती है हम सबकी असलियत। जैसे मेरी असलियत, मुझे पढ़ना लिखने में तकलीफ होती थी, लेकिन जब समझ लिया कि ये केवल एक मुखौटा है, असलियत को जानना पड़ेगा, ड्राइवर को एम्पावर करना पड़ेगा, तो जिंदगी चेंज होने लगी। और आज हम उसी जिंदगी का सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए यहाँ आ गए। मेरी दूसरी कहानी एक और संत महंत की है। बहुत मीठी बातें करते थे और बातें करते करते अक्सर शीशे में शक्ल देखते थे। तो लोग सुनने वाले थोड़े हैरान परेशान, ये क्या करते हैं। प्रश्न पूछो तो शीशे में शक्ल देखते हैं, जवाब पूछो तो शीशे में शक्ल, ये क्या करते हैं। इन्हीं में से एक बच्चे से बैठा नहीं गया, उसने कहा गुरुजी एक प्रश्न पूछना है। उसने कहा हाँ बस पूछ। उसने कहा ये बार बार आप शीशे में शक्ल देखते हो, इसका क्या रहस्य है। उसने कहा जब कोई भी समस्या जीवन में आती है तो मैं शीशे में शक्ल देखता हूँ और शीशे में उस व्यक्ति की शक्ल नजर आती है जिसने वो समस्या क्रिएट करी है। तो लोगों ने कहा कौन दिखाई देता है। कहते हैं शीशे में देखोगे तो कौन दिखाई देगा, स्वयं का प्रतिबिंब। तो समझ आता है कि ये तकलीफ जीवन में किसने क्रिएट करी, मैंने। और यदि समस्या का समाधान निकालना है तो दूसरी बारी चेहरा देखता हूं, फिर स्वयं की शक्ल दिखाई देती है, तो इस समस्या का समाधान कौन देगा, वो भी मैं ही दूंगा। क्योंकि आज के मानव को यदि कहो कि इस समस्या का समाधान ये है, तो कहेंगे नहीं दीदी, पर आपकी प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट थी, मेरी प्रॉब्लम तो थोड़ी ज्यादा डिफरेंट है।
तो भगवान भी हमको वो शीशा देता है जिससे स्वयं की वास्तविकता, स्वयं की सच्चाई हमारे समक्ष आ जाती है। आज मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी। यदि आज भगवान इस धरा पर आ जाए और इस समय मैं कहूं भगवान आ चुका है और आपसे कहे कि किस प्रकार की जिंदगी चाहते हो, तो क्या कहेंगे? एक ऐसी जिंदगी जिसमें पीस हो और सुकून हो और बच्चों खुशी हैप्पीनेस हो, सुकून हो, शांति हो। तो यही बात मैंने आपके दिल की यहाँ लिख दी कि एक ऐसी जिंदगी जहां प्यार हो, शांति हो, इक्वालिटी हो, एक ऐसी जिंदगी जहां हैप्पीनेस हो। इन शब्दों को नोट कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ी देर के बाद याद दिलाऊंगी। एक ऐसी जिंदगी जहां कंफर्ट हो। ये कंफर्ट एक गद्देदार सोफे पे बैठने की कंफर्ट की बात नहीं है, क्योंकि कई बारी मनुष्य सोफे पे भी बैठ के एटमोस्ट डिस्कम्फर्टेड हो सकता है। आप एसी में बैठे हो लेकिन फिर भी पसीने पसीने हो सकते हैं। तो ये कंफर्ट है, मन का कंफर्ट। और कोरोना ने हमें सिखा दिया कि एक ऐसी जिंदगी जहां गुड हेल्थ, ये भी चाहिए, यही चाहिए। तो अब याद रखिएगा कि हमारी लाइकिंग और हमारी शॉपिंग की लिस्ट क्या है? सुख, शांति, आनंद, प्यार, हैप्पीनेस, ये सब चीजें हमें चाहिए। पर प्रश्न उठता है, व्हाट हैव वी एंडेड अप क्रिएटिंग? चाहिए तो ये था, मार्केट गए थे सब्जी लाने, फल लाने, लेकिन लेकर के क्या आ गए? कूड़ा करकट। और जब घर में ऐसा सामान फालतू का ले आते हैं तो मम्मी से सुनना पड़ता है कि तुम्हें इसीलिए भेजा था, सारे पैसे निपटाए। होता है कई बारी जब बिना सोचे पहुंच जाओ मार्केट करने, शॉपिंग करने, तो अक्सर गड़बड़ शॉपिंग हो जाती है। उसके बाद घर वालों से सुनना एक अलग होता है। ये तो रही हंसी की बात। लेकिन आज हम झांकेंगे कि हम क्या खरीद करके ले आए। एक ऐसी जिंदगी बना चुके हैं जहां कहते तो हैं वर्क लाइफ बैलेंस, लेकिन एटमोस्ट इम्बैलेंस बना दिया। लोग कहते थे वर्क फ्रॉम होम दे दो, वर्क फ्रॉम होम मिल गया। बिजनेस फ्रॉम होम चाहिए, वो भी मिल गया। लेकिन प्रेशर्स और बढ़ते चले गए। अब कहते हैं मैनेज नहीं हो रहा, अब कहते हैं स्ट्रेस बहुत हो रहा है। ऐसी ही जिंदगी है। अपनों के साथ बैठे हैं लेकिन सब अपने अपने मोबाइल्स में बिजी हैं। किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। और जब ऐसी जिंदगी हो जाती है तो कभी बच्चों का भय, कैसी जिंदगी है। आज देखो क्या क्या हो जाता है, रेप्स, कितना गंद आज समाज में हो गया है। डर लगता है बच्चों को कहीं भेजने में। तो आज हमने ही ऐसी जिंदगी बना दी है और उसके पश्चात हम कहते हैं somebody else is responsible for my pain। होता है ऐसा? अगर ये चीज सुधर जाए, समाज सुधर जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाए। अरे गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो ये हो जाए। अरे ऑफिस में पॉलिसीज चेंज हो जाए तो ऐसा हो जाए। और इसी रेस में भागते भागते हमें कुछ बेहतर चाहिए, फास्टर चाहिए, भागते भागते हमने अपनी जिंदगी को इस कदर क्रेजी बना दिया है। इसलिए अक्सर हम सबके जहन से एक शब्द निकलता है और वो शब्द क्या है? आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव टाइम। राइट? आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव टाइम। तो ब्रह्मा कुमारीज में बिजी शब्द का बहुत सुंदर संधि विच्छेद मैंने सीखा। बिजी तो है लेकिन बिजी होते हुए भी बी इजी, बी इजी। बस ये शब्द हम लोगों ने सीख लिया। तो कार्य करते करते
जो हम लोगों ने अपनी जिंदगी को स्ट्रेसफुल, पैनिक, एंजाइटी, प्रेशर, ये डिफरेंट डिफरेंट इमोशन से अपने जहन को भर लिया और कहते हैं नींबू दबाओगे तो नींबू का रस निकलेगा, आम दबाओगे तो अमरस निकलेगा, इंसान को दबाओगे क्या निकलेगा? क्रोध निकलेगा, स्ट्रेस निकलेगा। हाँ, आज कहते हैं भाई साहब जरा अपनी इस गाड़ी इधर कर लीजिए, मैं क्यों करूं, तू कर। तो जो भरा हुआ है अंदर वही कॉन्स्टेंटली निकलता जा रहा है। तो आज समझ ही लेते हैं कि ये तनाव है क्या, समझना चाहेंगे? तनाव सिंपल शब्दों में, इजी भाषा में, ये एक प्रकार का दर्द है जो मुझे बार बार कह रहा है that there is something that I need to change. बस क्या यही जिंदगी है? अब कुछ परिवर्तन चाहिए। ये है तनाव। और तनाव की परिभाषा हम सब ने 6ठी 7वीं क्लास में फिजिक्स में पढ़ी थी, याद है किसी को? प्रेशर, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, हमारी इनर क्षमता। लेकिन आज के मनुष्य से पूछो, आपको स्ट्रेस होता है? स्ट्रेस होता है? होता है। अजी हमें क्या, सबको होता है। अक्सर लोग ऐसा ही जवाब दिल्ली में दे देते हैं, अजी हमें क्या, इसको होता है। अरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब लेना शुरू करेंगे। तो लोग कहते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जबकि ऐसा नहीं है। हम शायद भूल गए कि देयर इज वन मोर शब्द विच इज सिटिंग इन द डिनोमिनेटर एंड दैट इज रेजिलियंस, मेरी स्वयं की शक्ति। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि मुझे स्ट्रेस को कम करना है तो क्या कर सकती हूँ? कोई है सॉल्यूशन इसी इक्वेशन को देख करके? कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा? इनर पावर को बढ़ाना होगा। और कोई तरीका? रेजिलियंस को बढ़ाना होगा। और कोई? तनाव हटाना होगा। और कोई? मेडिटेशन। और प्रेशर को नहीं कम कर सकते? हाँ? नहीं नहीं दीदी, ये सब तो बने बनाए दीजिए। बहुत सुंदर, तालियां बजा लीजिए अपने लिए। अक्सर मनुष्य कहता है प्रेशर को कम करना होगा। तो मेरा सवाल है आप सबसे, क्या प्रेशर हमारे कंट्रोल में है? आज बहन ने मेरे को यहीं पे सबके सामने चिल्ला दिया, क्या मैं इनके मुख को कंट्रोल कर सकती हूँ? आज गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, क्या मैं उसे चेंज कर पाई? नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन हुआ, हम चेंज कर पाए? आज एक चक्रवात आ जाता है, क्या हम नेचर को समझा पा रहे हैं? तो हम किसको समझा सकते हैं? अक्सर लोग कहते हैं मैं उसको सीधा कर दूंगा। अरे भाई, दुनिया ही गोल है, हम किसको सीधा करेंगे? तो हमें सीधा करना है केवल स्वयं को, अपनी इनर रेजिलियंस को बढ़ाना, सिर्फ यही काम करना है। इसलिए स्टॉप ब्लेमिंग आउटसाइड, स्टार्ट टेकिंग द कंट्रोल ऑन योर ओन। और उसके लिए पहली एक्सरसाइज, सभी तनाव मुक्त होना चाहते हैं? आज एटलीस्ट 3 चीजें यहां से आप सब लेकर के जा सकते हैं। पहला है इंस्पिरेशन, मोटिवेट अपने आप को करेंगे। दूसरा है मेथड्स, जो कि हम आपको भरपूर दूंगे। और तीसरा है माइंडसेट, वो आपको खुद बनाना होगा कि हाँ मुझे परिवर्तन करना है। तो मेरा पहला रूल है, चेक व्हाट आर यू ईटिंग। आप कहेंगे क्या, मैं तो खाना ही खाता हूं, फ्रूट्स ही खाता हूं। नहीं, ये फिजिकल खाने की बात नहीं है, ये मन बुद्धि को कौन सा खाना खिला रहे हैं। क्योंकि मन बुद्धि का जो थॉट है वो है विचार।
जिसपे सिर्फ मैंने काम किया था और उसको समझने के बाद वो शक्ति मिली जो आज मैं आपके सामने खड़ी हो पाई। विचार क्या आ रहे थे, मैं कर ही नहीं सकती, मुझे कुछ नहीं आता, मेरा जिंदगी बर्बाद है, मैं पढ़ नहीं सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो भगवान ने कहा कि गाड़ी में तकलीफ है, तू बिल्कुल ठीक है। अरे वाह, इतना सिंपल, ये बात नहीं समझ में आ रही थी। गाड़ी टूटी हुई है, मैं ड्राइवर तो एकदम परफेक्ट हूं ना। अब एक परफेक्ट ड्राइवर टूटी गाड़ी को चला करके एयरपोर्ट पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाएगा? पहुंचा सकता है। बड़ी कला सीख ली। तो सोचना, क्या सोचना है, वो भगवान ने हमको सिखा दिया। और उसका फलस्वरूप, इफ माई माइंड इज वीक, कमजोर है, तो सिचुएशंस, समस्या नजर आते हैं। यदि मन स्टेबल है, स्थिर है, तो सिचुएशन, चुनौती, चैलेंजेस नजर आते हैं। लेकिन मन यदि एम्पावर्ड है, सशक्त है, तो ये सारी सिचुएशंस एक अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं, जो कि यहां सिखाया जाता है। तो आज हम जानेंगे इस सर्कल ऑफ लाइफ को, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, बचपन से शुरू हुआ, डिफरेंट अवस्थाओं से हम सब गुजरे, बचपन, युवा, जवानी, और इस अवस्था से गुजरते गुजरते बहुत से डिस्ट्रैक्शंस हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन जिंदगी का नाम है, चलती का नाम गाड़ी। तो आज ये जो डिस्ट्रैक्शंस हमारे जीवन में आते हैं, वो क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अगर आप सबको दिख रही है तो जरा गौर फरमाइए। समझो हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी बात आती है, अब कहते हैं हमको स्ट्रेस होता है। आज घर का ही एक एग्जाम्पल देती हूँ। फादर थके हुए शाम को घर आते हैं, बच्चे उछल कूद मचाते हुए, पापा पापा हमारे साथ खेलो। तो कई बारी क्या होता है, पापा कहते हैं तो चपत लगा दिए, तमीज नहीं है, वाइफ को बोलेंगे अक्ल नहीं दी, थका हुआ आया हूँ, तुम्हें क्या पता मेरे ऑफिस में क्या क्या हुआ है। हाँ, और हमने बच्चे को डांट डपट करके वहीं बिठा दिया, राइट? बच्चा भी तकलीफ में, फादर तो अपसेट थे ही, और अपसेट हो गए, घर का माहौल भी तकलीफ में। तो व्हाट हैपेंड वाज अ सिचुएशन केम फ्रॉम एक्सटर्नल। अब वो सिचुएशन फादर के रूप में हो सकती है, मदर के रूप में हो सकती है, मैं ऑफिस जाऊं वहां पर हो सकती है, किसी ने मुझे भला बुरा कहा उसके रूप में हो सकती है, और उसके बाद शुरू होती है गाड़ी। वो गाड़ी क्या है? I start creating thoughts. These thoughts will start creating feelings, emotions. देखो कैसे कह दिया, पापा तो है ही ऐसे। पापा सोच रहे बच्चों को अकल नहीं है, वाइफ को भी अकल नहीं है, सिखाती तो पहले मेरे लिए पानी लाओ, फिर ये करो, फिर ये करो। अब क्या हुआ, ये धीरे धीरे थॉट्स से इमोशंस, फीलिंग्स, अब ये धीरे धीरे हमारे एक्शंस में आ गया। अब पापा कहेंगे आ जाओ चलो खाना खाते हैं, बच्चे क्या करेंगे, भूख नहीं है, हाँ ऐसा ही होता है, अच्छा खा लो, ज्यादा नखरे नहीं करो, तो वो बच्चा भी रोता धोता एक फुल्का खा लेगा। घर का माहौल स्ट्रेस्ड हो जाता है, और यही गाड़ी हमारी चलती रहती है। फिर हम कहते हैं तो जिंदगी क्या है, कट रही है। अब ऑन द कॉन्ट्रेरी, यही पे यही सिचुएशन, लेकिन सिचुएशन को बदल देते हैं। फादर आए, बच्चों को जब ऐसा बोला, तो अब जब ये थॉट्स पे हमारा कंट्रोल होता है, तो फादर को भी समझ में आता है कि यस, द किड्स हैव बीन वेटिंग फॉर मी एवर सिंस मॉर्निंग। तो बच्चे किससे बात करेंगे, मुझसे ही तो करेंगे, अच्छा आओ बेटा, अच्छा जल्दी से जाओ मेरे लिए पानी ले आओ, फिर खेलते हैं तुम्हारे साथ, खेलेंगे, अच्छा बैठेंगे। तो वही सिचुएशन लाइट हो जाती है। ये सिचुएशन लाइट कैसे हुई? याद है हमने क्या शॉपिंग करनी चाहिए थी बेहतरीन जिंदगी के लिए? लव, पीस, सुकून,
हैप्पीनेस, यही मांगा था। तो जो मांगा था वो दे क्यों नहीं रहे? जो जिंदगी में चाहिए वो देना पड़ेगा। खुशियां बटोरते बटोरते जिंदगी बीत गई, पर फिर भी खुश ना हो सके। फिर एट द फैग एंड ऑफ माई लाइफ आई रियलाइज्ड कि खुश नसीब तो वो लोग थे जो खुशियां बांट रहे थे। तो क्या करना पड़ेगा? खुशियां बांटनी पड़ेगी। तो परमात्मा कहता है बच्चे, when you create thoughts, these thoughts are creating feelings. अब हर चीज जो बाहर से आ रही है, मेरा रिस्पॉन्स पॉजिटिव है। आई गिव हैप्पीनेस, वंडरफुल, कोई बात नहीं, आज डैड इरिटेटेड है, कुछ हुआ होगा, दैट्स ओके, थोड़ी देर के बाद सब सही हो जाएगा। सो थॉट्स, पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव हैबिट। और जब पॉजिटिव हैबिट होती है तो हमारी पर्सनालिटी पॉजिटिव हो जाती है। और ऐसी पर्सनालिटी से हर कोई मिलना चाहता है। तभी गाना बना, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। बच्चा कहता है मुट्ठी में है तकदीर हमारी, तो हम भी हंसते थे, ये भी कोई बात है, हमारी तकदीर हमारी मुट्ठी में थोड़ी है, उसने बनाई है, उसने हमको यहाँ भेज दिया। मैं भी ये कहती थी, तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया, और अगर ऐसा गंदा सा बनाया है तो मुझे वापस उठा लो। तो भगवान कहते हैं नहीं, तेरी तकदीर तेरी मुट्ठी में है, मुट्ठी में अर्थात तेरे कंट्रोल में है। हर घड़ी हम अपनी तकदीर बना रहे हैं। हर घड़ी आई एम क्रिएटिंग अ डेस्टिनी विच इज created with positive thoughts, positive feelings, positive attitude, positive action, positive habit and a great positive personality. अब आप कहेंगे ये शुरू कहाँ से हुआ? Definitely thoughts से शुरू हुआ। और ये thoughts किसने क्रिएट किए? किसने क्रिएट किए? Myself, मैंने। तो आइए समझते हैं ये मैं कौन है। आज इसकी गुत्थी को भी सॉल्व करना पड़ेगा। मैं ये शरीर या मैं कुछ और? श्योर, सुना हुआ है, अनुभव किया, पक्का? बहन ने अनुभव किया है, आत्मा। और कोई कुछ और कहना चाहेगा? मैं ये शरीर या मैं कुछ और? क्या कहेंगे? हम सभी अपने आप को क्या कहते हैं? वी आर ह्यूमन बीइंग्स। यस और नो? ह्यूमन बीइंग्स दो शब्द से बना है, ह्यूमन और बीइंग। शरीर और इस शरीर के अंदर चैतन्य सत्ता आत्मा, राइट? तभी शरीर के अंदर जब वो आत्मा आती है तो हम क्या कहते हैं? चुरपुर हो रही है, हिल रहा है बच्चा, राइट? और चली जाती है तो हम एक शब्द का यूज करते हैं, चल बसा। यस और नो? इस शरीर में बसता था और यहां से निकल करके कहीं और बस गया, चला गया और बस गया। अरथी, रथ है बट द ड्राइवर इज नो मोर, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। रथ है बट रथी ड्राइवर नहीं है। तो हम जब इन बातों को समझते हैं, जो कि आपको डिटेल्स में यहां समझाया जाएगा, तो शरीर को इंटरैक्ट करने के लिए 5 तत्व चाहिए, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। उसी प्रकार आत्मा की भी मांग है, आत्मा की भी मांग है। और आत्मा की मांग है ये 7 बातें। आप कहेंगे दीदी इसको याद कैसे करें? 2 मिनट में याद हो जाएंगी। करना चाहेंगे? समझो हम सब यहाँ बैठ के विचार गोष्ठी कर रहे हैं। कोई व्यक्ति बाहर से आता है, जहां जाके बैठेगा उससे पूछेगा भाई साहब क्या चल रहा है यहाँ पे, वो भाई साहब बताएंगे यहाँ पे ये चल रहा है। विच मीन्स हर व्यक्ति को नॉलेज की आवश्यकता है, ज्ञान बताओ क्या चल रहा है। जैसे ही ये बता दिया उसको क्लैरिटी मिल गई, ओ अच्छा ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, विच मीन्स प्योरिटी अर्थात क्लैरिटी मिल गई। उसके बाद आपको जब बात समझ आ जाती है तो यू फील वेरी कंफर्टेबल, यू फील लव्ड। उसके बाद शांति आ जाती है। हाँ, अगर मुझे कंट्रीब्यूट करना है तो मैं भी करूंगी, नहीं तो हम आराम से सुनेंगे बैठ के।
एंड जहां प्यार है, लव है, खुशी है, वहां चौथा बच्चा विच इज ब्लिस, अर्थात मन शांत हो जाता है, खुशी में हो जाता है, एम्पावर्ड हो जाता है, आनंद की अवस्था में होता है। और जहां ये सब है, ऐसी आत्मा क्या होगी? सशक्त आत्मा, एम्पावर्ड आत्मा। फिर आपका जो शरीर है, ये चाहे जैसा भी हो, टूटा फूटा जो भी हो, आप सब एम्पावर्ड हो जाते हो, सशक्त हो जाते हो। फिर आता है कि आत्मा की ये 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। मन सोच रहा है, बुद्धि निर्णय दे रही है, और उसके बाद संस्कार। जब हम कार्यान्वित करते हैं, एक्शन में लाते हैं, तो वो चीज एक संस्कार छोड़ती है, डीप, राइट? तो प्रश्न उठता है कि मन कितने प्रकार के विचार चलाता है। तो बड़ी अच्छी स्टडीज इस पे कंडक्ट की गई। तो मन में 4 प्रकार के विचार चलते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, असेंशियल एंड बेस्ड। पॉजिटिव, मेरा भी भला हो, सबका भला हो, आई विन, यू ऑल्सो विन, विन विन थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स, मेरा तो भला नहीं होगा, मैं तो हूं ही ऐसी, अच्छा चलो मेरा भला हो जाए तो इनका भला ना हो, या किसी का भी भला ना हो। रिजेक्टेड थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, फुल ऑफ वाइसेस। असेंशियल थॉट्स, काम करना है, ऑफिस जाना है, बैंक जाना है, कुछ और करना है। फिर आते हैं वेस्ट थॉट्स, विच आर फालतू का थॉट्स। आप में से किस किस को गाड़ी चलानी आती है? गाड़ी चलानी, गाड़ी, बाइक, स्कूटर, कुछ भी सबको आती है। ओके, मैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ। वेरी गुड। वेस्ट थॉट्स आर लाइक, स्कूटी को तो ऑन कर दिया, लेकिन स्कूटी को न्यूट्रल में छोड़ दिया, अब रेस लगा रहे हैं उसके ऊपर। 5 घंटे हो गए, कहीं 10 से मस्ती हो रही होगी, क्या होगा? जहां है वहीं खड़े रहेंगे, और गर्म होगी, गर्म भी हो जाएगी। पेट्रोल खर्च होगा, जलने लग जाएगा, पेट्रोल ही सारा उड़ जाएगा। That is exactly what is happening. Waste thoughts are useless thoughts, फालतू thoughts, जिसका कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता, वैसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता। अरे भाई साहब, अभी कुछ भी नहीं हुआ, फालतू क्यों सोच रहे हो? तो फॉरेन में एक न्यूज़पेपर आता है, हफिंगटन पोस्ट, यूएस में। उन्होंने कहा आओ इस पे रिसर्च करें। तो हफिंगटन पोस्ट में एक रिसर्च करी गई कि मनुष्य किस प्रकार के थॉट्स और कितने चलाता है। उन्होंने सब पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एज, सेक्स, छोटा बड़ा हर कंट्री से लोग पकड़ लिए। अब मजे की बात है, रिसर्च की फाइंडिंग्स क्या हुई कि पहली बार पता चली कि एक मनुष्य दिन में लगभग 30 से 50 और बहुत से बहुत तो 70,000 थॉट्स क्रिएट कर लेता है। You see the kind of energy that we are creating? And उससे भी उनका पेट नहीं भरा। उन्होंने कहा जरा देखें क्या वेराइटी ऑफ थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं। So interestingly, it came out कि 90% of the thoughts were negative and waste. Only 5% of the thoughts were positive and 5% of the thoughts were essential. आप में से कुछ इंडस्ट्रीज रन करते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि आपकी इंडस्ट्री का 90% प्रोडक्शन बेकार है, अब फैक्ट्री को चलाएंगे भाई साहब, चलानी चाहिए। क्या कहेंगे, मूर्ख है ना वो लोग जो चला रहे हैं, या तो पैसा ज्यादा है। मजे की बात है, ये फैक्ट्री यहां चलती है। नेगेटिव वेस्ट, फालतू के विचार 90%। तो भगवान कहता है एम्पावर किसको करना होगा? लोग कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, भाइयों जैसे कपड़े पहना तो हो गई एम्पावरमेंट। क्या कपड़े पहन लेने से, जॉब कर लेने से, गाड़ी चला लेने से हम एम्पावर होंगे? क्या सिर्फ विमेन को ही एम्पावर होने की जरूरत है, या बच्चों को एम्पावर होने की जरूरत है, भाइयों को एम्पावर होने की जरूरत नहीं है?
क्या करेंगे? बोलो हाँ या नहीं, क्या बोलेंगे? सिर्फ विमेन को एम्पावर कर दे? हाँ, फिर क्या करना होगा? आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी भोजन मिलेगा। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? सबको एम्पावर करना पड़ेगा। पर ये एम्पावर शारीरिक एम्पावरमेंट की बात नहीं है, ये एम्पावरमेंट है यहाँ के एम्पावरमेंट की। मन बुद्धि को सशक्त बनाना होगा। आप कहेंगे एग्जाम्पल बताओ? बिल्कुल सिंपल। वन डे यू आर एब्सोल्युटली हेल एंड हार्टी, बहुत बढ़िया चल रहा है। सडनली किसी का फोन आ गया, उसने बहुत ही बुरी खबर सुना दी, आपका कोई बहुत प्रियजन शरीर छोड़ दिया। कैसी हालत होगी? तब जैसे ना दिल ही बैठ जाएगा, लगेगा अरे ये क्या सुना दिया। ओ, बंदा बैठ जाता है, उसके बाद क्या कहेगा? ओ देखो जरा मेरा बीपी देखो। ऐसा ही होता है ना, मेरा बीपी देखो, बुखार सा लग रहा है। बुखार नहीं है, बुखार सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने दमी खींच लिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, एक दिन आप रियली में सिक हैं और किसी ने कहा आपकी प्रमोशन नहीं डबल प्रमोशन हो गई है। अब क्या होगा? अरे उठाओ यार, चलो लेट्स सेलिब्रेट। पापा आपको तो तबीयत ठीक नहीं है, छोड़ना, चलते हैं घूमने। ऐसा ही होगा ना? तो इट इज ऑलवेज mind over matters, my dear brothers and sisters. It is always mind over matters. लेकिन मन को एम्पावर करने के लिए मैं क्या करूं? प्रश्न तो यही उठता है ना, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। तो देखिए, मैंने स्क्रीन पे कुछ डाला है, क्या आप इसे पढ़ पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं, बहुत डिफिकल्ट होता है, थोड़ा थोड़ा। अच्छा एक मिनट, अब देखिए, अभी कुछ पढ़ पा रहे हैं? हाँ? पक्का? हाँ। क्या अंतर था पहली स्क्रीन और स्क्रीन में? हाँ जी, सर कह रहे स्पेसेस नहीं। बहुत सुंदर। अब आप में से कोई इसको जोर से पढ़ के सुनाना चाहेगा सबको? एनीबडी? देखिए, एनीबडी? It's no secret that the age-old practice of meditation has gained mass appeal. Meditative practices are known longer just for health gurus and yogis. They are now embraced by politicians, celebrities, athletes, and even those of us who don't make the cover of Us Weekly. Which means कि meditative practices सीखने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हमें कोई बड़ा एथलीट बनना है, कोई बड़ा बिग बी बनना है। ये मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस हम सबके लिए है, हम सब सीख सकते हैं। तो आप कहेंगे जल्दी से सिखाओ, लेकिन सबसे पहली बात, जैसे ही मैंने मेरे स्लाइड में स्पेसेस ऐड किए तो वही अक्षर लेजिबल हो गए। एंड नाउ आई एम थिंकिंग लेस, आई एम थिंकिंग स्लो एंड आई एम थिंकिंग बेटर। ये तो हुई मन की बात, ये तो हुई पढ़ने की बात। अब प्रश्न उठता है कि यही खेल हमारा मन में भी चल रहा है। मन में भी थॉट्स की गाड़ी लगी हुई है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, झड़ी रोकते ही नहीं है। फिर कहते हैं जी सर में बड़ा दर्द होता है। होता है कभी? ऐसा ही होता है ना हम सबके साथ कि सर में बड़ा दर्द होता है, पता नहीं कैसे थॉट से कंट्रोल में ही नहीं आते। वो इसलिए कंट्रोल में नहीं आते क्योंकि हमने स्पेसेस डाली नहीं। कभी यहाँ झांक के देखा ही नहीं, स्क्रीन में देखने की इतनी आदत हो गई है फोन में कि यहाँ भी एक स्क्रीन चल रही है, यहाँ भी एक बच्चा रो रहा है, उसकी खोज खबर नहीं करते। एज अ रिजल्ट हम भगाते जा रहे हैं अपनी गाड़ी को। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी में बड़ी अच्छी बात सीखने को मिली, मेडिटेशन। लोग कहते हैं बड़ा भारी शब्द है जी, योग नहीं लगता। आप में से किसी को ऐसा लगता है? कोई बात नहीं, हाथ खड़ा कर सकते हो क्योंकि आज सॉल्यूशन मिलने वाला है। किसी को लगता है मेडिटेशन भारी है, योग नहीं लगता? लगता है तो फिर हाथ क्यों खड़ा करना? भारी है। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। क्लैपिंग करिए भाई, ये सच्चे लोग हैं। होंगे एक आध और भी, लेकिन इन्होंने सच बोला तो आज की बात तो पक्का लगेगा। अब रुको, आज सीखना चाहोगे सभी?
पक्का हाँ या नहीं? आवाज से बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। 3 शब्द, 3 क्वेश्चंस आप सबसे पूछूंगी और इन 3 क्वेश्चंस के बाद आई कैन वाउच ऑन इट 100% सभी का योग लगेगा। रेडी? रेडी ब्रदर्स हियर, एवरीबॉडी इज रेडी? सोने के लिए रखिए। पहला सवाल, आप सभी से मैं 2 मिनट के लिए बोलूं, पहुंच जाइए अपने अपने घरों में। पहुंच करके दरवाजा खटखटाइए। जिसने भी दरवाजा खोला या आप खुद खोल रहे हैं, घर के अंदर जाके प्रवेश करिए। जाकर के अपने उस सोफे पे, सीट पे, जहां आपको बैठना बहुत कंफर्टेबल लगता है, वहां जाके बैठ जाइए। राइट? अब घर में जो व्यक्ति है वो पूछे, अरे आप तो सेंटर गए थे, कैसा रहा प्रोग्राम? अच्छा था? सब मजा आया? बताइए उनको क्या क्या हुआ, कौन मिला, कैसे मिले, क्या हुआ, बात बताइए। वो व्यक्ति आपसे पूछ रहा है चाय पिएंगे या ठंडा लेंगे, जो भी पसंद है वो ऑर्डर कर दो। वो व्यक्ति आपके लिए वो चीज लेकर के आ गया। अब धीरे धीरे उस चीज को पीना शुरू करो, स्वाद ले लेकर के, स्वाद ले लेकर। जब पी लिया हो तो शांति से यहां आकर के बैठ जाइएगा और हाथ खड़ा कर दीजिएगा। आगे आगे आगे। कौन गया था? कौन गया था? आप सब तो मेरे सामने बैठे हो, मेरी बात सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो गया कौन था? मन गया था। मन को मैंने संकल्प दिए थे, बुद्धि ने उसको विजुअलाइज किया था। घर का दरवाजा खुला, चाहे यहां से 5 किलोमीटर दूर होगा, पर 1 सेकंड में ये पूरा खेल खेलते हुए घर भी हुआ है, व्यक्ति से भी मिल लिए, बैठ भी लिया, कुछ पीना था वो पी भी लिया और आकर के यहाँ बैठ गए। यस और नो? तालियां बजाइए सबको। मेडिटेशन, मेरा काम पूरा हुआ, इन्हें मेडिटेशन आ चुका है। राइट? दिस इज व्हाट इज मेडिटेशन। इट इज दैट सिंपल। इट इज दैट सिंपल। सिर्फ एक छोटा सा अंतर है। अंतर क्या है? अब आप सभी को मैं अपने घर में इनवाइट कर रही हूं, आओ। अब आप सभी मेरे घर जाएंगे। जाएंगे? अभी जाना होगा। ओके, वेरी गुड। ओके, अब यदि मैं ये कहूं कि मुझे आपके घर जाना है, डेफिनेटली भाई साहब, जरूर। लेकिन अब मैं क्या करूंगी? मैं इमेजिन करूंगी कहाँ होगा, कितनी दूर होगा, कौन से माले में होगा, लिफ्ट होगी या नहीं होगी, छोटा होगा, बड़ा होगा, मैं इमेजिन कर रही हूँ। बट यू वर ऑल विजुअलाइजिंग, यस और नो? सो मेडिटेशन इज नॉट इमेजिनेशन, माइंड यू। मेडिटेशन इज विजुअलाइजेशन। लेकिन हम क्यों विजुअलाइज नहीं कर पाते? क्योंकि अभी तक स्वयं की पहचान नहीं थी। किसको याद करना है, किससे शक्ति मिलनी है, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। पिताजी है वो मेरा सुप्रीम फादर, उसके बारे में नहीं जानते थे। भगवान बोला, अरे शिव भगवान, वहां शंकर जी भगवान, नहीं वहां जगन्नाथपुरी में वहां भगवान, राम भगवान, सीता भगवान, कोई कहता है नहीं क्राइस्ट भगवान, कोई कुछ भगवान, कितने सारे भगवान बना दिए। अरे भगवान कहता है बच्चे बहुत सिंपल बात है भाई, जैसा बच्चा या ये कहो जैसा पेरेंट वैसा बच्चा, लुक एंड फील लगभग सिमिलर होती है। डेफिनेटली माँ बाप को रिजेंबल करता है। तो यदि आप आत्मा हो, इसमें कोई दो राय है, कोई कंफ्यूजन है? मानते हो ना कि हमारे अंदर कोई एनर्जी है जो एनर्जी चला रही है। एक व्यक्ति है बड़ा बढ़िया जी रहा है, सडनली शरीर छोड़ देता है, क्या गया? हार्ट भी वही है, एवरी वाइटल ऑर्गन इज इनसाइड, बट व्हाट हैज लेफ्ट? वी ऑल नो द सोल। अगर हम आत्मा है तो हमारा पिता कौन होगा? जोर से बोलो, परमात्मा होगा। परम शरीर सुना है कभी?
सुना है कभी परम शरीर? परम शरीर को याद करो, नहीं, क्या कहते हैं, परमात्मा को याद करो। चाहे जगन्नाथ बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन जगत का नाथ वो सुप्रीम परमात्मा है। तो मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? इट इज अ वर्ड विच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मेडरी। मेडरी का मतलब है टू हील, हील करना। प्रश्न उठता है, बॉडी को हील करना है, बॉडी को हील करने के लिए तो डॉक्टर्स हैं, लेकिन हमें हील करना है इस ड्राइवर को, इस चैतन्य सत्ता को जो इस गाड़ी को चला रहा है। जब हम उसे हील करते हैं, इस कला को कहते हैं मेडिटेशन। कोई इसे योग कहता है, कोई इसे मेडिटेशन कहता है, भगवान इसे कहता है बच्चे ये तो याद है। जैसे ही आपने अपने बच्चों को याद किया तो बच्चों के चेहरे सबकी आंखों में आ जाते हैं। अब मैं कहूँ बच्चों को एम्ब्रेस करो तो आप एम्ब्रेस भी कर सकते हैं, या जरूरी है कि वो यही होगा तो मैं दिखाई देगा मुझे ऐसा होगा? नहीं। कितनी बारी होता है ना कि पेरेंट्स के बच्चे होते हैं यूएस में, कहीं कहीं और, लेकिन याद किया वो उनकी नटखट हरकतें सामने आती है। हम भगवान को जानते ही नहीं, उसके साथ रिश्ता ही नहीं जोड़ते, कहते तू भगवान है, मैं भक्त हूँ, मैं जमीन में लेटा हुआ हूँ, तू दे दे मुझे शांति। वो कहता है अरे तू तो मेरा बच्चा है, तू अधिकारी है, तू भिखारी थोड़ी है। तो जो मेरा है वो तेरा है। हो गया ना इजी? रिश्ता जुड़ा और प्यार लुटना चालू हो गया। ले भैया ले ले। तो ये है मेडिटेशन। इस मेडिटेशन को अंग्रेजी में हम कभी कभी ट्रैफिक कंट्रोल कह देते हैं, कि शांति से बैठ जाओ, अपने संकल्पों को देखो और संकल्पों को चैनलाइज करना शुरू करो। नेगेटिव है तो उन्हें पॉजिटिव की ओर मोड़ दो कि भैया मेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, मैं तो हुई भगवान की बच्ची। भगवान ने बैठकर, भाग्य विधाता ने बैठ करके खुद मेरा भविष्य रखा है, लिखा है, तो मैं तो हूं ही भाग्यशाली। तो ये है मेडिटेशन कि wherein I am consciously creating pure positive and powerful thoughts। एंड जब आप प्योर पॉजिटिव एंड पावरफुल थॉट्स क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन क्लियर, क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव बन जाता है। This is how simple this knowledge is। तो सभी मेडिटेशन का अनुभव करना चाहेंगे। इसमें मैं एक बहुत सुंदर कहानी जरूर से सुनाना चाहूंगी। एक बारी की बात है, एक छोटा बच्चा था और चर्च में गया तो देखा चर्च में प्रेयर्स चल रही थी। तो देखा कि पादरी साहब बड़ी अच्छी कुछ प्रेयर सुना रहे हैं, अंग्रेजी के उसके कुछ बोल हैं। तो उस बच्चे को समझ तो नहीं आया, प्रोबेबली ऑफ हिज एज। तो छोटा सा जाके पादरी के साथ खड़ा हो गया। पादरी साहब भी कुछ बोल रहे थे, वो भी कुछ बोलने लगा। पादरी उसे देख रहा है कि मेरे साथ आके कौन खड़ा हो गया, और ही वॉज एस्टोनिश्ड कि इस बच्चे के होठ फड़फड़ा रहे हैं। पादरी से रहा नहीं गया, उसने फटाफट अपनी प्रेयर सुना दी। उसने उस बच्चे को पूछा प्रेयर्स खत्म होते ही, ये बच्चे तू क्या कर रहा है? कहता आप क्या कर रहे हैं? कहता मैं तो प्रेयर्स बोल रहा था। तो बच्चे ने कहा मैं भी प्रेयर्स बोल रहा था। अच्छा तू कौन सी प्रेयर्स बोल रहा था? उसने कहा आप अपनी प्रेयर बोल के दिखाओ, फिर मैं अपनी प्रेयर बोल के दिखाऊंगा। तो पादरी ने अपनी प्रेयर अंग्रेजी वाली फिर से सुना दी। बच्चे को कुछ समझ नहीं आया। बच्चे ने कहा मैं ABCD XYZ सब सुना रहा था भगवान को। तो मैंने भगवान को कह दिया देखो इनकी अंग्रेजी के ये शब्द तो मुझे आते नहीं, आपका जो मन करे ना, उस अंग्रेजी में भी यही ये 26 शब्द लगे हुए हैं, थोड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, आपका जो मन करे आप वैसे ऑर्गेनाइज कर लेना, मुझे तो ABCD सुनाना आता है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि भगवान को किसकी प्रेयर अच्छी लगी होगी? क्यों? हाँ कुछ भी सुना दिया, आउट ऑफ लव, दिल की बात करी, रटी रटाई बात नहीं करी। तो मेडिटेशन में भी हम दिल की बात उस दिलवर भगवान से, जिसका नाम है दिलाराम, बहुत सुंदर शब्द है।
दिल को आराम देने वाले भगवान से हम दिल की बातें करते हैं, और जब आप दिल की बातें करते हैं तो वो दिल को छूती है, और जब दिल को ये बातें छूती हैं तो डेफिनेटली जिंदगी एम्पावर्ड हो जाती है। इसलिए भगवान हमेशा कहते हैं कि बच्चे, गाड़ी में 3 प्रकार के व्हील्स होते हैं, पता है? 3 प्रकार के व्हील्स। एक है वो व्हील जिस पे गाड़ी चल रही है, पहिया। दूसरा व्हील है जो स्टेपनी होता है, और तीसरा व्हील है स्टीयरिंग व्हील। अक्सर मनुष्य स्टेपनी को तो कभी देखता ही नहीं है। हाँ, पड़ी है, ठीक है, देख लेंगे। जब तकलीफ हुई तो स्टेपनी स्टेपनी करना चालू हो गए। और स्टीयरिंग व्हील वो है जिसके बिना गाड़ी नहीं चल सकती है। तो आज अपने आप से पूछो, भगवान को कौन सा व्हील बनाया है? स्टेपनी। इज इट गुड? इज इट गुड? तो क्या करना पड़ेगा? तो क्या करना पड़ेगा? भगवान को अपने जीवन का स्टीयरिंग व्हील देना पड़ेगा, क्योंकि जब भगवान को आपने स्टीयरिंग व्हील दे दिया ना, तो ये मेरी जिंदगी में सक्सेस का राज है। मैंने अपनी जिंदगी में भगवान को अपनी जीवन का स्टीयरिंग व्हील दे दिया। जब बिजनेस शुरू किया तो लोगों ने कहा ये अच्छा मौसम नहीं है बिजनेस शुरू करने का, क्योंकि 2008 में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे वर्ल्ड में, भाइयों को शायद पता हो। तो लोगों ने कहा ये मूर्खतापूर्ण काम मत करो। तो मैंने उनसे यही कहा कि समय की मांग है, और यदि मैं इन टफ टाइम्स में सरवाइव कर गई तो डेफिनेटली अच्छे टाइम्स तो मैं सरवाइव कर जाऊंगी। लेकिन अंदर में मैंने एक गेम खेला। मैंने भगवान को अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना दिया और खुद मैं सीईओ बन गई। सीईओ मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आगे चीफ लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान को कहा कि तुम इस कंपनी के डायरेक्टर हो और मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, तुम्हें जहां भगाना है, जो कराना है कराना, लेकिन आपकी कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होनी चाहिए। और वो दिन आज दिन भगवान ने हर दिन 1-2 से आगे बढ़ाता चला गया, और बाबा हमेशा से, भगवान जिसको हम बाबा कहते हैं, उसने हमेशा हमें लाइट कर दिया। तो जिंदगी को हमने कुछ इस कदर आसान कर दिया कि भगवान को अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील बना दिया। ओम शांति। आगे एक छोटा सा मेडिटेशन में हम सभी बैठेंगे। सभी रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। आज के इस सुंदर दिन को अपने जीवन में हमेशा के लिए याद रखिए। ये वो दिन है जब स्वयं परमात्मा पिता ने मुझे यहाँ आने का आमंत्रण दिया। ये वो भाग्यशाली दिन है जब उस परमात्मा का मैंने निमंत्रण स्वीकार किया। आज दिन तक उसको भगवान, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, हे परवरदिगार, न जाने कितने नामों से बुलाया। और आज पहली बारी समझ में आया कि वो परम पिता परमात्मा मुझे आत्मा का पिता है। मैं उसकी प्यारी संतान, जो इस शरीर को बहुत सुंदर रूप से चला रही है। इस शरीर के द्वारा सुनती हूँ, देखती हूँ, बोलती हूँ, अनुभव करती हूँ।
मस्तक के मध्य विराजमान चैतन्य सत्ता आत्मा हूँ, a point of light and light that shines in the center of the vortex. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। स्वीकार कर लीजिए। न जाने जिंदगी में भागते भागते कहाँ से बाहर वालों के संस्कारों को अपने जीवन में डाल दिया। मैं प्यार स्वरूप आत्मा हूँ, प्यार के सागर की संतान हूँ। मेरा हृदय प्यार से भरा हुआ है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। अनुभव करो, हजार भुजाधारी भगवान अपने प्यार भरे हाथों से मेरे सिर पर मुझे आशीष दे रहा है। बच्चे, तू महान सौभाग्यशाली, तेरा जीवन सुखों से भरपूर। तुझे छूने से पहले किसी को भी मुझे अर्थात परमात्मा को क्रॉस करना पड़ेगा। इसलिए तू सदैव सेफ है। स्वीकार कर ले। कुछ देर भगवान के प्यार का अनुभव करो। शुक्रिया करो। अपना बनाने के लिए, अपना परिचय देने के लिए धीरे से वापस आएंगे। फिर से अपना सुंदर पार्ट रोल प्ले करने के लिए ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। आज और अभी से एक बात स्मृति में सब ले जाइएगा, that today is the first day of rest of my life. यदि मैं अपने जीवन को ऐसा ही सशक्त रखना चाहता हूँ या रखना चाहती हूँ, तो आज ये नई शुरुआत है। You have the power to create a conscious future. God is with you, but ask yourself, am I ready to transform my life? Om Shanti. थैंक यू वेरी मच आपको बुलाने के लिए। मुझे इस प्रोग्राम में पहली बार मैं ब्रह्मा कुमारी में आया हूँ और एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। 20 अक्टूबर को दीदी डीके उषा जी का प्रोग्राम मारवाड़ी मंच स्पॉन्सर कर रहा है। आप लोग सबको आना है वहाँ पर। वो प्रोग्राम दीदी के ज्ञान के साथ साथ अपना प्रसाद का प्रोग्राम भी वहाँ रखा जाएगा तिरपन भवन में। सबको जरूर से जरूर आना है। 20 अक्टूबर दीदी आप लोग सबको बोलेंगे, हम लोग बात जरूर सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। जोरे कौन तू? ओम शांति। और जोरे ओम शांति। वेरी गुड। आज हम
इतना अच्छा बिजी लाइफ में इजी मेडिटेशन सुना कि नहीं? इसमें बहुत अच्छा बात तो बताया गया है कि कैसे हम इजी मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन मेरे को सबसे अच्छा लगा मोनिका दीदी जी कि हम स्टेपनी परमपिता परमात्मा को नहीं बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्टीयरिंग व्हील। हम स्टीयरिंग व्हील बनाएंगे तो सब समस्या का समाधान हो जाएगा और हमारा सब समय याद रहेगा हम है ड्राइवर, ये शरीर ये गाड़ी, और उसका स्टीयरिंग व्हील कौन सा है? शिव बाबा है, परम पिता परमात्मा है। कितना अच्छा बात बताया। तो इसलिए जितना भी हम धन्यवाद देंगे, शुक्रिया करेंगे मोनिका दीदी को, वो कम पड़ेगा। वो आए इतना दूर से, दिल्ली से, और हमको धन्यवाद बाबा बोल सकते ना। अच्छा, तो जितना भी देंगे वो कम होगा। तो इसलिए और एक बार सब ताली दे करके हम धन्यवाद देंगे। हमारा जो दीदी है, दीदी नहीं अकड़, तो हमारा गीता दीदी जो इतना सबको, हम सबको इतना जोड़ के रखा है और हम सबको इतना अच्छा मोनिका दीदी को यहाँ लाया। तो वो गीता दीदी जो संदेशी दादी जी का अभी वो उनका छाया बन करके यहाँ है, तो उनको जितना भी धन्यवाद देंगे ये भी हमारे लिए काम होगा। हम धन्यवाद देंगे, पहले तो देना चाहिए परम पिता परमात्मा को, जो हम सभी का स्टीयरिंग व्हील है। तो उनको भी हम धन्यवाद देंगे कि इतना बड़ा परिवार, ईश्वरीय परिवार आज कितना बड़ा हो गया। कितना छोटा से, अभी भुवनेश्वर में भी देखिए, जब हम बचपन से भुवनेश्वर में आया है और देखा है कितना छोटा से आज दादी जी के कारण, संदेशी दादी जी के कारण आज इतना बड़ा फुलवाड़ी बन गया। तो संदेशी दादी जी जहाँ भी हैं वो भी खुश हैं, उनको भी धन्यवाद देंगे कि नहीं? यही है, संदेशी दादी जी भी यही है, तो उनको भी धन्यवाद देंगे। और किसको धन्यवाद देंगे? हमारे जो भाई बहन इतने प्यार से आए हैं, ये तो जरूर मिलेगा। और इससे पहले किसको देंगे बताइए? और किसको? तो आप सभी ने जो भी यहाँ आए हैं, कहीं कहीं से जो भी आए हैं, और यहाँ मेरा साथी बैठे हैं, मेरे का भाई जो कि फूड कमिश्नर थे, हमारा IFS के हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के हैं, मैं भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के हूँ, यहाँ उड़ीसा में थे, और वो राजस्थान के हैं, और जहाँ RBI के भी रिटायर्ड ऑफिसर बैठे हैं, कोई जो कॉर्पोरेट सेक्टर से भी जो भाई आए हैं, जो बहनें यहाँ बैठे हैं, और जो भी अभी चले गए हैं भाई बहन, सभी को आज के ये शुभ संध्या में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ओम शांति, धन्यवाद, नमस्ते। Thank you.
Thank you.